ஸ்ரீ குருபியோ நமக. அனைவருக்கும் நமஸ்காரம். இன்று பாபாங்குஷ ஏகாதசி. இந்த தினத்தில் விரதம் இருப்போ இல்லாதோர் இது நமக்கு அவசியமில்லை என்றில்லாமல் யார் ஒருவர் இந்த ஏகாதசி விரத மகிமையை கேட்கிறாரோ அவர்களது அனைத்து பாபங்களும் அழியுமாம். அவருடைய அம்மா கோத்திரத்தில் 10 தலைமுறை, அப்பா கோத்திரத்தில் 10 தலைமுறைகள், அவர்களுக்கு பாரிய மனைவி இருந்தால் அந்த கோத்திரத்தில் 10 தலைமுறைகள் என எல்லோரையும் கடை தேற்றும், எல்லோருக்கும் நற்கத்தி கொடுக்கும் என்று சொல்லப்படுகிறது. பத்ம மகாபுராணத்தில் யுதிஷ்டிரர் கேட்டுக்கொள்ள அவருக்கு பகவான் கிருஷ்ணர் சொல்வதாக அமைந்துள்ளது இந்த ஏகாதசி விரத மகிமை. யுதிஷ்டிரர் ஆஸ்வின கிருஷ்ணபக்ஷ ஏகாதசி எப்படி அனுஷ்டிக்க வேண்டும், அதன் மகிமை என்ன, ஹே பத்மநாபா இது பற்றி எடுத்து சொல்லும் என்று கேட்க பகவான் கிருஷ்ணர் சொல்கிறார், ஹே யுதிஷ்ரா, ஏகாதசி விரதத்துக்கு நிகரான ஒரு விரதம் இந்த உலகிலேயே இல்லையப்பா. ஒவ்வொரு ஏகாதசிக்கும் ஒரு தனி பெருமை உண்டு, புண்ணியம் உண்டு. அதில் இந்த ஏகாதசிக்கு பாபாங்குஷ ஏகாதசி என்று பெயர். அங்குசம் என்பது யானையை அடக்குகின்ற ஒரு கருவி. பாபங்கள் என்கின்ற யானையை இந்த ஏகாதசி விரதத்தால் அடக்கி விடலாம். அதனாலே இதற்கு பாபாங்குஷ ஏகாதசி என்று பெயர். இது ஒருவரது சர்வ பாபங்களையும், இதுவரை உள்ள அனைத்து பாபங்களையும் நீக்கக்கூடியது. இந்த தினத்தில் பத்மநாபன் என்ற திருநாமத்தில் பகவானை ஆராதிக்க வேண்டும். அதனால் இது பத்மநாப தினம், பத்மநாப ஏகாதசி என்றும் சொல்லப்படுகிறது. இது சர்வாபீஷ்டங்களையும் கொடுக்கக்கூடியது, இகபர சுகம் என இங்கும் நமக்கு சகல நன்மைகளையும் கொடுத்து நமது சகல விருப்பங்களையும் நிறைவேற்றி நமக்கு மோட்சத்தையும் தரவல்லது. என்னவெல்லாம் கொடுக்கும் என்று அதி அற்புதமான விஷயங்களை எடுத்து சொல்கிறது. அதையும் தெரிந்து கொள்ளலாம். எவ்வளவோ கடுமையான தபஸ், பல வருடங்கள் கஷ்டப்பட்டு செய்த தவ பலன், கர்மேந்திரியம், ஞானேந்திரியம், மனசென எல்லாவற்றையும் அடக்கி, இந்திரியங்களை எல்லாம் அடக்கி என்னவெல்லாம் கிடைக்குமோ அவையெல்லாம் இன்று பகவானுக்கு செய்யும் ஒரே ஒரு நமஸ்காரத்தால் கிடைக்குமாம். மோகத்தால், ஆசையால் காலம் காலமாக எவ்வளவோ விதமான பாபங்கள் திரும்ப திரும்ப செய்பவன் கூட நரகத்துக்கு போமாட்டான். எப்போது, எதனால்? இது சர்வ பாபங்களையும் அழிக்கும். எதனால்? ஹரியை நமஸ்கரிப்பதால். இந்த பூமியில் எவ்வளவோ கங்கை, கயா, காசி, புஷ்கரம் என எவ்வளவோ புண்ணிய தீர்த்தங்கள், புண்ணிய கஷேத்திரங்கள் எல்லாம் உண்டல்லவா. அதை எல்லாவற்றையும் தரிசனம் செய்த பலன், தீர்த்தத்தில் நீராடிய புண்ணிய ஸ்நானம் செய்த பலன் கிடைக்கும். எப்போது என்றால் விஷ்ணுவின் நாமத்தை தொடர்ந்து திரும்ப திரும்ப கீர்த்தனம் செய்வதால், சொல்வதால், பஜிப்பதால், விஷ்ணு சகஸ்ரநாமத்தை சொல்வதாலும் கேட்பதாலும் கிடைக்குமாம். சார்ங்கபாணியாக அந்த ஹரியை, அந்த ஜனார்தனனை யார் ஒருவர் பிரபத்தி செய்கிறாரோ, அதாவது நீயே எல்லாம் அப்பா, நீயே புகழ் என்று அவரை யார் ஒருவர் சரணாகதி செய்கிறாரோ அவருக்கு யமலோக யாதனை என்பது கிடையவே கிடையாது என்று சொல்லப்படுகிறது. ஒரே ஒரு ஏகாதசி ஜென்மத்தில் இந்த ஒரு ஏகாதசி விரதம் உபவாசம் இருந்தாலே போதும். ஞானத்துடன் பக்தியுடன் செய்யாவிட்டால் கூட பரவாயில்லை, தெரிந்தோ தெரியாமலோ இருந்தால் செய்தால் கூட பரவாயில்லை. அதாவது தொட்டால் நெருப்பு சுடும் அல்லவா, அது போல இந்த ஏகாதசி எனும் அக்னி சகல பாபங்களையும் பொசுக்கி விடுகிறது. அவனுக்கு நரக யாதனையே கிடையாது என்று சொல்லப்படுகிறது. ஜென்மாவில் ஒரே ஒரு முறை ஒருவன் இந்த ஏகாதசி உபவாசம் செய்தால் அவனுக்கு நரக யாதனையே கிடையாதாம். ஏகாதசிக்கு அப்பேற்பட்ட மகத்துவம் உண்டு. ஆனால் ஒன்று இங்கு அவசியம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். என்ன? ஏகாதசி என்பது ஹரிக்கு சுப்ரீத்தி கொடுக்கக்கூடியது என்று நினைத்து கொண்டு அதனால் ஹரிபக்தி செய்து இதர தெய்வங்களை எல்லாம் தூஷிக்க வேண்டும் என்று சிலர் நினைப்பதுண்டு. அது பரம பாபத்தை கொடுக்கும் என்று எச்சரிக்கிறது புராணம். ஒரு விஷ்ணு பக்தன் விஷ்ணுவை போற்றி துதி செய்கிறான், ஆனால் சிவநிந்தனை செய்து கொண்டிருக்கிறான் என்றால் அவனுக்கு விஷ்ணு லோகம் கிடைக்குமா என்றால் நிச்சயம் அவனுக்கு விஷ்ணு லோகம் கிடைக்காது. நிச்சயம் அவன் நரகத்துக்கு போய் சேருவான் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. ஒருவன் சைவனாக இருக்கிறான், பரம பசுபதி பக்தன் பாசுபதனாக இருக்கிறான். சிவபக்தன், அவன் சிவனை போற்றி துதிக்கிறான், ஆனால் விஷ்ணுவை நிந்தனை செய்பவன். தனது தெய்வத்தை உயர்த்தி பேசுவதும் மற்ற தெய்வத்தை மட்டம் தட்டுவதும் சிலரது குணமாக இருக்கும். தன்னுடையதை ஒழுங்காக ஸ்ரத்தையாக அனுஷ்டானம் செய்வதை விட்டுவிட்டு மற்றவர்களை எல்லாம் குறை கண்டு தூஷணம் செய்து அந்த பக்தர்களை வாக்கினாலும் செயலாலும் ஹிம்சை செய்த வண்ணம் இருப்பார்கள். நிந்தாமயமான வாழ்க்கையாகவே இருக்கும். நான் பரமசிவ பக்தன், நான் பசுமதி பக்தன், நான் பாசுபதன், நான் சிவனையே கொண்டாடுவேன், ஆனால் விஷ்ணுவை நிந்திப்பேன் என்றால் அவனுக்கு சிவலோகம் கிடைக்குமா என்றால் நிச்சயம் இல்லை. அதிபயங்கரமான கோரமான ரௌரவம் என்ற நரகத்தில் 14 இந்திரர்கள் இருக்கும் காலம் இருப்பார்களாம். அதாவது ஒரு கல்ப காலம், 432 கோடி வருஷங்கள் அவர்கள் நரகத்தில் இடர்பட வேண்டும். இதில் சந்தேகமே இல்லைன்னு சொல்லப்படுறது. சிவஸ்ய ஹிருதயம் விஷ்ணுகு, விஷ்ணோகு ஹிருதயம் சிவக. ஹரியின் இதயத்துக்குள் சிவன் இருக்கிறார், சிவனின் இதயத்துக்குள் ஹரி இருக்கிறார். அதனால் அவர்கள்
அவர்களுக்குள் பேதம் பார்த்து பிரிக்க கூடாது. ராமேஸ்வரத்தில் ராமச்சந்திரமூர்த்தி ஜோதிர்லிங்க ராமநாதரை பிரதிஷ்டை செய்தார்லவா, அங்கு காசியிலோ விஸ்வநாத பிரபு ராமா 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 என்று சதா சொல்லி எல்லோருக்கும் தாரக மந்திரத்தை உபதேசம் பண்ணி எல்லோருக்கும் மோட்ச துவாரத்தை திறந்து மோட்சம் கொடுக்கிறாரே. ராமருக்கு பிரியமானவர் சிவன், சிவனுக்கு பிரியமானவர் ராமர். அதனால் கோவிந்த மாதவ ஹரே முராரே என்று ஹரிஹர அஷ்டோத்திர சதநாம ஸ்தோத்திரம் கொண்டாடி சொல்கிறது. கோவிந்த மாதவ முகுந்த ஹரே முராரி சம்போ சிவேஷ சசிசேகர சூலபாணி தாமோதராச்சுத ஜனார்தன வாசுதேவ தியாஜ்யா பட்டாய இதி சந்ததமாமனந்தி என்று அற்புதமான ஹரிஹர அஷ்டோத்திர சதநாம ஸ்தோத்திரம் உள்ளது. இது ஒரு வரியில் ஹரிநாமம், அடுத்தது சிவநாமம், அடுத்து விஷ்ணுநாமம், அடுத்து சிவநாமம், இப்படி ஹரன் ஹரி ஹரன் ஹரி என்று 108 நாமங்கள். அதி அற்புதமானது. இந்த நாமங்களை யார் சொல்கிறாரோ, கோவிந்தா கோவிந்தா, சிவசிவா, சங்கரா சங்கரா, விஷ்ணு, நீலகண்டா, கங்காதரா, சக்கரபாணி, இப்படியெல்லாம் யார் சொல்கிறார்களோ, ஹே பட்டர்களே, அவர்கள் பக்கத்தில் நீங்கள் போகவே வேண்டாம். யமதர்மனிடம் நீங்கள் அவர்களை தயவு செய்து விட்டு விடாதீர்கள் என்று சொல்கிறார். அதாவது ஒரு பரமாத்மானவர் அநேகமான ஆக்கிருதிகளை எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறார். அதாவது தசாவதாரம் மட்டுமில்லாமல் அவரே சிவனாக, அவரே சக்தியாக, அவரே கணபதியாக, அவரே சூரியனாக, அவரே கோபால சுந்தரியாகவும் இருக்கிறாராம். இப்படி பரஸ்பரம் பாவனை செய்ய வேண்டும். இதுதான் பஞ்சாயத்தன பூஜையின் முக்கியமான சாரம். இதுவே சுத்த ஞானம்னு சொல்லப்படுறது. இதில் உள்ள ஒவ்வொரு வாச்சகங்களும் ரத்னமாக சொல்லப்பட்டுள்ளது. இதில் அதாவது 3 லோகத்திலும் பரம பாவனமானது, சிறந்தது, இதை பார்க்க வேறொன்றுமே இல்லை. எது அது? இந்த பாபாங்ஷ ஏகாதசி தினத்தில் விரத அனுஷ்டானம் செய்வது, இந்த விரத கதை கேட்பது. இதை விட உலகத்தில் சிறந்தது வேற எதுவும் இல்லைன்னு சொல்லப்படுது. இது பத்மநாப தினம், பாபாங்ஷ ஏகாதசி தினம் பத்மநாப ஏகாதசின்னு சொல்லப்படுது. இந்த தினத்தில் அனுஷ்டிக்கும் விரதம், பூஜை, ஸ்லோக பாராயணங்கள், பகவத் விஷயங்களை கீர்த்தனம் செய்தல், கேட்டல், படித்தல், இதை பார்க்க சிறந்தது வேற எதுவுமே இல்லை. உலகத்திலும் சிறந்தது வேற எதுவுமே கிடையாது. இந்த உலகத்தில் பாவம் எதுவரை இருக்கும் என்றால் உபவாசம் இருக்கும் வரை. உபவாசம் என்றால் சுவாமிக்கு பக்கத்தில் மிக அருகில் வசித்தல். இப்படி வசிப்பதால் இதற்கு உபவாசம் என்று பெயர். இந்த தினத்தில் பத்மநாபா என்ற திருநாமத்திலேயே வழிபட வேண்டும் சொல்லப்படுது. இதனால் 1000 அஸ்வமேத யாகங்கள், 1000 ராஜசூய யாகங்கள், இதையெல்லாம் திரட்டினால் கூட இந்த ஏகாதசியின் ஒரே ஒரு உபவாசத்துக்கு 1000ல் ஒரு கூறு, ஒரு பங்கு என்றால் ஒரு கூறு கூட சமமாகாதாம். இந்த ஏகாதசி அவ்வளவு உயர்ந்த பலன் உண்டு அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அதனால்தான் ஏகாதசிக்கு சமமானது வேற எதுவுமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லப்படுது. எதேச்சியாக ஒருவருக்கு உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருக்கலாம், அதன் காரணமாக அவர் சாப்பிடாமல் இருப்பார். அந்த விதத்தினால் இருந்தால் கூட பரவாயில்லை. அல்லது வேறு ஏதோ ஒரு காரணம், ஆகாரமே கிடைக்காம இருந்திருக்கலாம். அதனாலேயே எப்படியோ ஒரு விதத்தில் இந்த ஏகாதசி அனுஷ்டிருந்தா பரவாயில்லை. பாஸ்கரன் என்ற சூரியன் இருக்கார், அவருடைய சூரிய புத்திரன் தான் யமர் தர்மராஜன். அவரது இடம் சம்யவனை பட்டணத்துக்கு நரகத்துக்கு பக்கத்தில் உள்ளது யம தர்மராஜனின் வசிப்பிடம். அந்த அவரது லோகம் யமலோகத்திற்கு ஒருவர் செல்லவே மாட்டார். எப்போது இந்த பாபாங்குஷ ஏகாதசி அனுஷ்டித்தால், இந்த விரத மகிமை கேட்பதால் அவர் யமலோகத்துக்கு போக மாட்டார். நரக யாதனை அவருக்கு கிடையவே கிடையாது. அவருக்கு சொர்க்கத்தையும் மோட்சத்தையும் கொடுக்கக்கூடியது இந்த ஏகாதசி. அவருக்கு உடல் ஆரோக்கியமும் கொடுக்கக்கூடியது, நல்ல மனைவி, சத் சந்தான பேர் கொடுக்கக்கூடியது இந்த ஏகாதசி. தனலாபத்தையும் தரக்கூடியது இந்த ஏகாதசி. நல்ல நண்பர்களையும் கொடுக்குமாம். காசி, கயா, கங்கை, புஷ்கரம், குருக்ஷேத்திரம் என்று இதற்கெல்லாம் தனித்தனியாக ஒருவர் செல்லவே வேண்டாம். அந்த புண்ணியமெல்லாம் இந்த ஹரி தினத்தில் இருக்கும் உபவாசத்துக்கு எளிதிலேயே கிடைத்து விடுமாம். ராத்திரி ஒருவர் கண் விழித்து பக்தியுடன் உபவாசம் இருந்து யார் இந்த பாபாங்குஷ ஏகாதசி இருக்கிறாரோ, அனாயாசமாக அவருக்கு விஷ்ணு லோகம் கிடைக்குமாம். அவருக்கு மட்டுமில்லை, அவரது அம்மா கோத்திரத்தில் 10 தலைமுறை, அப்பா கோத்திரத்தில் 10 தலைமுறை, அவருக்கு பாரி மனைவி இருந்தால் அந்த கோத்திரத்தில் 10 தலைமுறை என எல்லோரையும் கடைத்தேற்றும் ஒருவர் இந்த பாபாங்குஷ ஏகாதசி அனுஷ்டிப்பதால், இந்த விரத மகிமை கேட்பதால், அதுவும் ஒரே ஒரு ஏகாதசி அனுஷ்டானத்தினாலே இந்த பலன் எல்லாமே கிடைக்குமாம். அவருக்கு எப்பேற்பட்ட கதி கிடைக்கும் என்றால், அவருக்கு சாக்ஷாத் ஸ்வரூப முக்தியே கிடைக்குமாம். அது என்ன? சங்கு சக்கர கதாபாணிகளாக கருட கொடியை தாங்கிக் கொண்டு வைஜெயந்தி வனமாலை தரித்து மஞ்சள் பட்டாடை உடுத்தி அவர்கள் ஹரியாகவே ஆகி ஹரிலோகத்துக்கு செல்வராம். யத்பாவம் தத்பவதி, அவனையே நினைக்கும் போது அவனாகவே ஆகிறோம். சின்ன வயதிலேயே
இல்லது யௌவன காலத்தில் அல்லது வயதான காலத்தில் எப்படியோ ஜென்மாவில் ஒரே ஒரு முறை இந்த விரதத்தை அனுஷ்டித்தால் அவருக்கு துர்கதியே கிடையாது. அவர் சர்வ பாபங்களிலிருந்து விடுபட்டு ஹரிலோகம் நிச்சயமாக சந்தேகம் இல்லாமல் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்றது. இந்த ஏகாதசி முடிந்து துவாதசியின் போது ஸ்வர்ணதானம், பூதானம், கோதானம், திலதானம், அன்னதானம், பாதுகாதானம், குடைதானம், வஸ்திரதானம் இதில் எது முடியுமோ அது என்றதை யார் ஒருவர் ஹரி பக்தருக்கு, பாகவதனுக்கோ பிராமணருக்கோ தானம் செய்கிறாரோ ந பஷ்யதி யாமம் நரக்கம், திரும்ப திரும்ப இதையே சொல்கிறது. அவர்கள் நரகத்தை பார்க்க மாட்டார்கள், யமலோகத்தை பார்க்க மாட்டார்கள், அதன் அருகிலேயே செல்ல மாட்டார் என்று திரும்ப திரும்ப ஆணித்தரமாக உறுதி செய்கிறது. உனக்கு நேர் புண்ணியலோகம் தான் என்று சொல்கிறது புராணம். இதை அனுஷ்டிக்காமல் வீணாக இருந்தால் அவன் வாழ்க்கை வெற்றாக வீணாகும்னு சொல்லப்படுறது. இதற்கு பணம் செலவு கிடையாது. ஒரே ஒரு துளசி தளம் போதும் அவனை வழிபட. எளிமையாக அர்ச்சனை செய்யலாம், மாலை கட்டி போடலாம். இன்று விஷ்ணு சகஸ்ரநாம பாராயணம் செய்வதும், புருஷ சுக்தம், நாராயண சுக்தம் இதையெல்லாம் சொல்லி அவனை பிரதட்சணம் செய்து நமஸ்கரிப்பது, அவனது புராணங்களை கேட்டு அவனையே நினைத்திருப்பது, இதெல்லாம் எளிமையான ஒன்றுதான் அல்லவா? பரம தரித்திரனும் அவனால் இயன்றதை செய்தாலே போதும். அதனால் ஒருபோதும் யமவாதனை கிடையாது. இதை அனுஷ்டிப்பதால், இதை கேட்பதால் தீர்க்க ஆயுளுடன் மகாலட்சுமி கட்டாட்சத்துடன் இருப்பார்களாம். திடகாத்திரமாக எந்த ரோகமும் இல்லாமல் சௌக்கியமாக இருப்பார்கள், மகிழ்ச்சியாக இருப்பார்கள். ஒருத்தரை பார்த்தாலே தெரியும் அவர் கஷ்டப்படுறவராக இருந்தால் அவர் பல பாபங்களை செய்தவராக இருப்பார், சுகமாக இருந்தால் நல்லவற்றை செய்திருப்பார். இதெல்லாம் தர்மம் செய்தால் அவருக்கு நற்கதி கிடைக்கும், அதர்மம் செய்தால் சந்தேகம் இல்லாமல் கெட்ட கதியே கிடைக்கும் என்பதை அறியலாம். அதனால் இந்த பாபாங்ஷ ஏகாதசி விரதம் அனுஷ்டிப்பதால் அதன் மகாத்மியம் கேட்பது பாபங்களை அழிக்கும், அவனுக்கு நரக யாத்தனை கிடைக்காது என்பது சர்வ நிச்சயம். எப்படி கிருஷ்ண பரமாத்மா சொல்லி இந்த பாபாங்ஷ விரத மகிமையை பூர்த்தி செய்கிறார். ஹே தர்மராஜா யுதிஷ்டிரா என்று தம்பியான அர்ஜுனனுக்கு குருக்ஷேத்திரத்தில் கீதையை போதனம் செய்தார். அண்ணாவான தர்மராஜாவுக்கு அவர் ஆசையா கேட்க இந்த ஏகாதசி விரத மகிமை எடுத்து சொல்கிறார். இந்த பாபாங்ஷ ஏகாதசி மகாத்மியம் இப்படி பாபங்களை அழிக்கக்கூடியது. பத்மநாபன் என்ற நாமத்தை சொல்லி அனந்த பத்மநாபனை வணங்குவோம். அகத்திக்கீரை என்றால் அமிர்த பிந்து, துளசி, அப்புறம் சுண்டைக்காய் என்றால் அச்சுதம், அச்சுத பழம், நெல்லிக்காய் என்றால் ஹரிபலம், தாத்ரி, ஆமலக்கம் என்னும் சொல்வர். இதையெல்லாம் ஹரி சம்பந்தப்பட்டது, அவருக்கு விசேஷமானது. புலி தவிர்த்து இதையெல்லாம் துவாதசி பாரணையில் நிவேதனம் செய்து எடுத்துக் கொள்ள வேண்டியது அவசியம். முடிந்தால் யார் ஒருவருக்காவது அன்னம் அளித்து, இயலாவிட்டால் அதற்கு சமமான தட்சிணையாவது கொடுத்து பத்மநாபனின் அருளுக்கு பாத்திரமாவோம். புரட்டாசி மாதம் திருவோணம் ஏகாதசி கூடிய இது கோட்டியில் ஒரு நாள். இந்த அற்புதமான தினத்தில் விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் பாராயணம் செய்வோருக்கு யமவாதனை கிடையாது, நற்கதி நிச்சயம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஸ்ரீ விஷ்ணு சஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்திரம். ஓம் शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्रतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे ओं नमो विष्णवे प्रभविष्णवे श्रीवैशम्पायन उवाच श्रुत्वा धर्मानशेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरः शान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत युधिष्ठिर उवाच किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणं स्तुवन्तः कं कमर्चन्तः प्राप्नुयुर्मानवा शुभं को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं जपन् मुच्यते जन्तुर्जन्म संसारबन्धनात् श्रीभीष्मोवाच जगत्प्रभुं देवदेवमनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः तमेव चार्चयन् नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययं ध्यायन् स्तुवन् नमस्यांश्च यजमानस्तमेव च अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षं स्तुवन्नित्यं सर्वदुःखातिगो भवेत् ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनं लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतभवोद्भवं एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवैरर्चेन्नरः सदा परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तपः परमं यो महद्ब्रह्म परमं यः परायणम्
पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलं दैवतं देवतानां च भूतानां यो व्ययः पिता यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे यस्मिंश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णो नाम सहस्रं मे शृणु पापभयापकं यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये ऋषिर्नाम्नां सहस्रस्य वेदव्यासो महामुनिः छन्दोऽनुष्टुप्तता देवो भगवान् देवकीसुतः अमृतांशूद्भवो बीजं शक्तिर्देवकीनन्दनः त्रिसामाहृदयं तस्य शान्त्यर्थे विनियुज्यते विष्णुं जिष्णुं महाविष्णुं प्रभविष्णुं महेश्वरम् अनेकरूपदैत्यान्तं नमामि पुरुषोत्तमम् अस्य श्रीविष्णोर्दिव्यसहस्रनामस्तोत्रमहामन्त्रस्य श्रीवेदव्यासो भगवान् ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीमहाविष्णुः परमात्मा श्रीमन्नारायणो देवता अमृतांशोद्भवो भानुरिति बीजं देवकीनन्दनस्रष्टेति शक्तिः उद्भवः क्षोभणो देव इति परमो मन्त्रः शङ्खबृन्नन्दकी चक्रीति कीलकं शार्ङ्गधन्वा गदाधर इत्यस्त्रं रताङ्गपाणिरक्षोभ्य इति नेत्रं त्रिसामासामगः सामेति कवचम् आनन्दं परब्रह्मेति योनिः ऋतुः सुदर्शनः काल इति दिग्बन्धः श्रीविश्वरूप इति ध्यानं श्रीमहाविष्णुप्रीत्यर्थे सहस्रनाम जपे विनियोगः ध्यानं क्षीरोदन्वत्प्रदेशेषु चिमणिविलसत्सैकते मौक्तिकानां माला क्लुप्तासनस्तस्फटिकमणिनिभैर्मौक्तिकैर्मण्डिताङ्गः शुभ्रैरभ्रैरदभ्रैरुपरि विरचितैर्मुक्तपीयूषवर्षैः आनन्दीनः पुनीयादरिनलिनगदा शङ्खपाणिर्मुकुन्दः भूः पादौ यस्य नाभिर्वियदसुरनिलश्चन्द्रसूर्यौ च नेत्रे कर्णावाशा शिरोद्यौर्मुखमपि दहनो यस्य वास्तेयमब्धिः अन्तस्थं यस्य विश्वं सुरनरखगो भोगि गन्धर्वदैत्यैः चित्रं रम्यते तं त्रिभुवनवपुषं विष्णुमीशं नमामि ॐ नमो भगवते वासुदेवाय शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयकरं सर्वलोकैकनाथं मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथं नमः समस्तभूतानाम् आदिभूताय भूभृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे सशङ्खचक्रं सकीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलशोभिकौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं छायायां पारिजातस्य हेमसिंहासनोपरि आसीनमम्बुदश्यामम् आयताक्षमलङ्कृतं चन्द्राननं चतुर्बाहुं श्रीवत्साङ्कितवक्षसं रुक्मिणी सत्यभामाभ्यां सहितं कृष्णमाश्रये हरिः ॐ विश्वस्मै नमः विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यभवत्प्रभुः भूतकृद्भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शिवस्तानुर्भूतादिर्निधिरव्ययः सम्भवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो दाता विदाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो हृषिकेशः पद्मनाभो मरप्रभुः विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा सविष्टस्तविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोकिताक्षः प्रतर्दनः प्रबोधस्त्रिकगुप्ताम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठश्रेष्ठः प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमक्रमः अनुत्तमो दुरादर्श कृतज्ञ कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अहः संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वादिरच्युतः वृषा कपिरमेयात्मा सर्वयोगविनिसृतः वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः
रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिश्शुचिस्रवाः अमृतः शाश्वतस्तानुर्वरारोहो महातपाः सर्वगः सर्वविद्वानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्दंश्रश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः अनगो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः उपेन्द्रो वामनः प्रांशुरमोघः शुचिरूर्जितः अतीन्द्रः सङ्ग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् अमेयात्मा महादृदृक् महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सताङ्गतिः अनिरुद्धः सुरानन्दो गोविन्दो गोविदाम्पतिः मरीचिर्दमनो हंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभः सुतपाः पद्मनाभः प्रजापतिः अमृत्युः सर्वदृक्सिंहः सन्दाता सन्धिमान् स्थिरः अजो दुर्मर्शनः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिहा गुरुर्गुरुतमो धाम सत्यः सत्यपराक्रमः निमिषो निमिषस्रग्वी वाचस्पतिरुदारदीः अग्रणीर्ग्रामणि श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः सम्प्रमर्दनः अहः संवर्तको वह्निरनिलोदरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृक् विश्वभुग्विभुः सत्कर्ता सत्कृतः साधुर्जन्नुर्नारायणो नरः असङ्ख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्टः शिष्टकृच्छुचिः सिद्धार्थः सिद्धसङ्कल्पः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाकी वृषभो विष्णुर्वृषपर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तश्रुतिसागरः सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसुः नैकरूपो बृहद्रूपः शिपिविष्टः प्रकाशनः वोजस्तेजो द्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रुद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करद्युतिः अमृतांशोद्भवो भानुः शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतुः सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्यभवन्नाथः पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभुः युगादिकृत् युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजिदनन्तजित् इष्टो विशिष्टः शिष्टेष्टः शिखण्डी नकुशो वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपान्निधिरधिष्ठानमप्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो दुर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः शौर्यजनेश्वरः अनुकूलः शतावर्तः पद्मी पद्मनिवेक्षणः पद्मनाभो रविन्दाक्षः पद्मगर्भः शरीरभृत् मकर्दिरुद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः अतुलः शरभो भीमः समयज्ञो हविर्हरिः सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः विक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सकः महीधरो महाभागो वेगवानमिताशनः उद्भवः क्षोभनो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानस्तानदो ध्रुवः परर्दिः परमस्पष्टस्तुष्टः पुष्टः शुभेक्षणः रामो विरामो विरतो मार्गो नेयो नयो नयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरदोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्टि परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्तावरस्तानुः प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विन्नस्तविष्टो भूर्धर्मयूपो महामकः नक्षत्रणेमिर्नक्षत्री क्षमः क्षामः समीहनः यज्ञयुज्यो महेज्यश्च क्रतुः सत्रं सताङ्गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम् सुव्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुखदः सुहृत् मनोहरो जितक्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववशो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुद्धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्तः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः
उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरिदक्षिणः सोमपो मृतपः सोमः पुरुजित्पुरुसत्तमः विनयो जयः सत्यसन्धो दाशार्हः सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो मितविक्रमः अम्बो निधिरनन्तात्मा महोदधिशयोऽन्तकः अजो मकार्हः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षिः कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुषेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गगनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेदास्वाङ्गोजितः कृष्णो दृढः शङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामणाः भगवान् भगः नन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाकण्ड परशुर्दारुणो द्रविणप्रदः दिवस्पृक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिरयो निजः त्रिसामासामगः साम निर्वाणं भेषजं बिशक् सन्न्यासकृच्छमशान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ती निवृत्तात्मा संक्षेप्ताक्षेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपतिः श्रीमताम्बरः श्रीधर श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावनः श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमाल्लोकत्रयाश्रयः स्वक्षस्वङ्गशतानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्चिन्न संशयः उदीर्णः सर्वतश्चक्षुरनीशः शाश्वतस्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो प्रतिरतः प्रद्युम्नो मितविक्रमः कालनेमिनिकावीरः शौरिः शूरजनीश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिकाकरिः कामदेवः कामपालः कामी कान्तकृतागमः अनिर्देश्य वपुर्विष्णुर्वीरो नन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्मविवर्धनः ब्रह्मविद्ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाकविः सव्यस्तव प्रियस्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पूरयिता पुण्यः पुण्यकीर्तिरणामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमना कविः सद्गतिः सत्कृतिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयो नलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दुर्धरोतापराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिरमूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिशताननः एकोनैकः सवः कः किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरकाविशमशून्यो घृताशीरच्चलश्चलः अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकदृक् सुमेधा मेधजोधन्यः सत्यमेधाधराधरः तेजो वृषोधुतिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो निवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभाङ्गो लोकसारङ्गः सुतन्तुस्तन्तुवर्धनः इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजनसशृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्यः सर्ववागीश्वरेश्वरः महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधिः कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनोऽनिलः अमृताशो मृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजिच्चत्रुतापनः न्यग्रोधो दुम्बरोऽश्वत्थश्चाणूरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैदा सप्तवाहनः अमूर्तिरणगोचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत्कृशस्तूलो गुणर्बृह्निर्गुणो महान् अधृतस्वधृतस्वा
प्रभास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृत्कथितो योगी योगीशः सर्वकामदः आशमनः शमनः क्षामः सुपर्णो वायुवाहनः धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डो दमयिता दमः अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः तत्त्ववान् सात्विकः सत्यः सत्यधर्मपरायणः अभिप्रायः प्रियार्होः प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय स गतिर्ज्योतिः सुरुचिर्हुतभुग्विभुः रविर्विरोचनः सूर्यः सविता रविलोचनः अनन्तो हुतभुग्भोक्ता सुखदो नैकजोऽग्रजः अनिर्विन्नः सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनातनतमः कपिलः कपिरव्ययः स्वस्तिदः स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्ति भुक् स्वस्ति दक्षिणः अरौद्रः कुण्डली चक्री विक्रम यूर्जितशासनः शब्दातिगः शब्दसखः शिशिरः शर्वरीकरः अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिनाम्बरः विद्वत्तमो वीतभयः पुण्यः श्रवणकीर्तनः उत्तारणो दुष्कृतिका पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः वीरकारक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपोऽनन्तश्रीर्जितमन्युर्भयापहः चतुरश्रोगभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशः अनादिभूर्भुवो लक्ष्मी सुवीरो रुचिराङ्गदः जननो जनजन्मादिर्भीमो भीमपराक्रमः आधारनिलयो दाता पुष्पहासः प्रजागरः ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवः पणः प्रमाणं प्राणनिलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्युजरातिगः भूर्भुवस्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाज्ञो यज्ञवाहनः यज्ञभृत् यज्ञकृत् यज्ञी यज्ञभुक् यज्ञसाधनः यज्ञान्तकृत् यज्ञगुह्यम् अन्नमन्नादयेव च आत्मयोनि स्वयं जातो वैकानः सामगायनः देवकीनन्दनः स्रष्टा क्षितीशः पापनाशनः शङ्खबृन्नन्दकी चक्री शाङ्गधन्वा गदाधरः रताङ्गपाणिरक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधः श्रीसर्वप्रहरणायुध ॐ नमः इति वनमाली गतिशार्ङ्गी शङ्की चक्री च नन्दकी श्रीमान्नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतु वनमाली गदिशार्ङ्गी शङ्की चक्री च नन्दकी श्रीमान्नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतु वनमाली गदिशार्ङ्गी शङ्की चक्री च नन्दकी श्रीमान्नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतु श्रीवासुदेवोऽभिरक्षतु ॐ नमः इतीदं कीर्तनीयस्य केशवस्य महात्मनः नाम्नां सहस्रं दिव्यानाम् अशेषेण प्रकीर्तितं य इदं शृणुयान्नित्यं यश्चापि परिकीर्तयेत् नाशुभं प्राप्नुयात् किञ्चित् सोमुत्रेक च मानवः वेदान्तगो ब्राह्मणस्य क्षत्रियो विजयी भवेत् वैश्यो धनसमृद्धस्य शूद्रसुखमवाप्नुयात् धर्मार्थी प्राप्नुयात् धर्ममर्थार्थी चार्थमाप्नुयात् कामानवाप्नुयात् कामी प्रजार्थी चाप्नुयात् प्रजां भक्तिमान्यः सदोत्थाय शुचिस्तद्गतमानसः सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नामेतत् प्रकीर्तयेत् यशः प्राप्नोति विपुलं याति प्राधान्यमेव च अचलां श्रियमाप्नोति श्रेयः प्राप्नोत्यनुत्तमम् न भयं क्वचिदाप्नोति वीर्यं तेजश्च विन्दति भवत्यरोगो द्युतिमान् बलरूपगुणान्वितः रोगातो मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्येत बन्धनात् भयान्मुच्येत भीतस्तु मुच्येतापन्न आपदः दुर्गान्यतितरत्याशु पुरुषः पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण नित्यं भक्तिसमन्वितः वासुदेवाश्रयो मर्त्यो वासुदेवपरायणः सर्वपापविशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनं न वासुदेव भक्तानामशुभं विद्यते क्वचित् जन्म मृत्युजराव्याधि भयं नैवोपजायते इमं स्तवमदीयानः श्रद्धा भक्तिसमन्वितः युज्येतात्मसुखश्रान्ति श्रीधृति स्मृतिकीर्तिभिः न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो नाशुभा मतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे द्यौसचन्द्रार्कनक्षत्राकं दिशो भूर्मको दधिः वासुदेवस्य वीर्येण विधृतानि महात्मनः ससुरासुरगन्धर्वं सयक्षोरगराक्षसं जगद्वशे वर्ततेदं कृष्णस्य सचराचरम् इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः सत्त्वं तेजो बलं धृतिः वासुदेवात्मकान्याहुः क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एव च सर्वागमानामाचारः प्रथमं परिकल्पते आचारप्रभवो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युतः ऋषयः पितरो देवा महाभूतानि दातवः जङ्गमा जङ्गमं चेदं जगन्नारायणोद्भवं योगो ज्ञानं तथा साङ्ख्यं विद्या शिल्पादिकर्म च वेदाशास्त्राणि विज्ञानमेतत्
सर्वं जनार्दनात् एको विष्णुर्महद्भूतं पृथग्भूतान्यनेकशः त्रिलोकान् व्याप्य भूतात्मा भुङ्क्ते विश्वभुगव्ययः इमं स्तवं भगवतो विष्णुर्व्यासेन कीर्तितं पठेद्य इच्छेत् पुरुषश्रेयः प्राप्तुं सुखानि च विश्वेश्वरमजं देवं जगतः प्रभुमव्ययं भजन्ति ये पुष्कराक्षं न ते यान्ति पराभवम् ॐ नम इति अर्जुन उवाच पद्मपत्रविशालाक्ष पद्मनाभसुरोत्तम भक्तानामनुरक्तानां त्राता भव जनार्दन श्रीभगवानुवाच यो मां नाम सहस्रेण स्तोतुमिच्छति पाण्डव सोऽहमेकेन श्लोकेन स्तुत एव न संशय ॐ नम इति व्यास उवाच वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तु ते श्रीवासुदेव नमोऽस्तु ते ॐ नम इति पार्वत्युवाच केनोपायेन लघुना विष्णो नाम सहस्रकं पठ्यते पण्डितैर्नित्यं श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो ईश्वर उवाच श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम नाम वरानन ॐ नम इति ब्रह्मोवाच नमोस्तवनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाकवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः श्रीसहस्रकोटियुगधारिणे ॐ नम इति संजय उवाच यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम श्रीभगवानुवाच अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे आर्ता विषन्ना शिथिलाश्च भीताः घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानाः संकीर्त्य नारायण शब्दमात्रं विमुक्तदुःखा सुखिनो भवन्तु आर्ता विषन्ना शिथिलाश्च भीताः घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानाः संकीर्त्य नारायण शब्दमात्रं विमुक्तदुःखा सुखिनो भवन्तु कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व पुरुषोत्तम इति श्री विष्णुसहस्रनामस्तोत्रं सम्पूर्णं हरिः ओम् सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु।